Good evening, everyone. Welcome to Vidya Lankar. My name is Naushad and I'm the program advisor here at Vidya Lankar. So, today we are going to conduct a demo lecture for IT and computer science engineering students. And the topic for today would be OS, that is operating system. And the professor will take you through some important questions through which you can identify and know which type of questions you will be asked during your GATE examination. So, before starting with the session, I would like to introduce Vidya Lankar to you. So, for students who are from Mumbai, they might know about Vidya Lankar, but the students who are not from Mumbai, for them, sir, can we just go through the next slide, please? Yeah. So, Vidya Lankar is a 60-year-old institute, and it was started by Professor C.S. Deshpande and Dr. Sanjeevani Deshpande. So they started Vidya Lankar with a rented classroom with only 2 students and with a motto that knowledge is the only ornament. Okay, and if you can see now, Vidya Lankar is a big institution, is a big group with many institutions. Sir, can we just go to the next slide, please? If you can see here, we have Vidya Lankar classes and publications. Where we train students for all India competitive examinations like JEE Mains, Advanced, NEET, and obviously GATE. We also have VIIE, that is Vidya Lankar Institute for Information for International Education, where we have tie-ups with international institutions. And then we have Vidya Lankar Polytechnic, we have Vidya Lankar Institute of Technology, which is our own engineering college at Mumbai, Wadala. We have Vidya Lankar School of Information Technology. We have Congo, our digital vertical. Admit Abroad, where we train students for international entrance examination. And then we have Skillville. We also have Vidya Lankar School of Business, where we train students for management, that is MBA program. So can we just go to the next slide? Yeah. So if you see here, the entire Vidya Lankar group is operated by more than 1,000 employees. And every year we train more than 30,000 students every year. And obviously, as I said, we are a 59-year-old institution, and this year we are on our 60th year. And the today's session, so without wasting time, I would, we would quickly start with the session. And the today's session would be taken by Professor Amit Eliani. So Amit sir himself is a GATE ranker. He is, he has also qualified UGC NET examination. And he has an overall experience of 5 years. So he's been teaching GATE since 5 years now. So I hope that the session would be really informative to you. So I would request Amit sir to take forward from here. Over to you, Amit sir. Thank you, sir. Thank you so much for the introduction part. So good evening, guys. So I'm Professor Amit Eliani. I'm going to start today's presentation and today's session. I'm not say the presentation because presentation सोचने में ही आपको थोड़ी बोरियत लगेगी, but आज का हमारा डेमो लेक्चर में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ. As I can understand, you are the 3rd year and the 2nd year students. So आज हमारे सामने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है that is a GATE examination. तो सबसे पहला सवाल आता है why we go for the GATE examination. हमें क्या बेनिफिट है, क्या जरूरत पड़ी हमें गेट पढ़ने की. Now the changing the world due to pandemic, अभी जितने MS करने जो अब्रॉड जाते हैं, मास्टर्स करने के लिए जाते हैं, अभी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, there is so many variation in the different sector, but only the one sector, that is a GATE, still more students are focusing here. The reason behind is when you complete your graduation from one of the any engineering college in Mumbai or apart from the Mumbai or nearby the Maharashtra, any all over the India, but the point is that these college might be provide you 3 to 4 lakh package due to pandemic situation, which will be very difficult. But what is the benefit of GATE? The point is that when we choose a GATE, because you're going for the master in the IITs and the NITs, which give you a high package, which is minimum 10 to 12 lakh package. So आओ देखते हैं गेट के लिए क्या क्या सिलेबस है, क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, क्यों हम कैसे शुरू करने वाले हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. IIT बॉम्बे इस साल कंडक्ट करने वाला है.
तो अब मैं समझ में जाता है कि सर आईआईटी बॉम्बे का क्या रोल है यहाँ पे। हर साल एक नया आईआईटी कंडक्ट करता है, हमेशा ऑर्गेनाइज करता है। इन बिटवीन जितने भी हमारे सामने जो पैटर्न्स होते हैं वो उसको अथॉराइज्ड होता है और वो सब चीजें मैनेज करता है। नाउ दिस टाइम स्टूडेंट हु आर अपीयरिंग फॉर द थर्ड ईयर आल्सो एलिजिबल फॉर द गेट एग्जाम। इसका मतलब आपके पास 2 हुक्म के इक्के आ चुके हैं। आप एक बार फाइनल ईयर में 2 और एक बार थर्ड ईयर में 2, यानी कि दोनों में से जो आपका बेस्ट स्कोर कार्ड है आपके उसके बेसिस में एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज a candidate may appear one or more than 2 paper, means that if you have a sufficient if you have a caliber to crack the another branch, अगर कुछ बच्चे को लगता है सर मेरे को दूसरे ब्रांच के साथ मेरे को इजीली हो पाएगा, ओप अप हो पाएगा, तो मैं दूसरा ब्रांच का पेपर भी साथ में दे सकता हूं। ये फैसिलिटी इस बार ऐड ऑन हुई है। Now the pattern is there is no changes. The basic pattern मैं आपको बता देता हूँ। The total 65 questions हैं, right? जिसके अंदर 100 मार्क्स का है, 10 एप्टीट्यूड का आना फिक्स है, 55 मार्क्स के टेक्निकल्स हैं, उसमें से 10 मार्क्स का जो एप्टीट्यूड आता है, टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे और 85 क्वेश्चन टेक्निकल हो गए, यानी कि 15% आपके पॉकेट में ऑलरेडी है अगर आपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन की है या करने वाले हैं। टेक्निकल आपको 85% पे फोकस करना है। शुरू करते हैं। और क्या क्या सब्जेक्ट का हमने एनालिसिस किया, ये मैं आपको इसके पहले लेक्चर में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें अगर हमें पता है तो हमें प्रिपरेशन करना और किस वे में हमें सोचना है वो इजी हो पाएगा। अगर मैं कहूं कि बचपन से हमें सिखाया जाता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे ज्यादा सिंपल होता है, वो पहले करना चाहिए। आपको याद होगा बचपन में, तो इसका स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी सेम होगी। मैं आपको यहाँ पे वो चीजें बताने जा रहा हूँ कि मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। लास्ट टाइम आईआईटी मुंबई 2013 में कंडक्ट हुआ था, उसके बाद 2005 में हुआ है। यानी कि अगर मैं उसका एग्जाम का पैटर्न समझूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया है, और आफ्टर दिस टाइम 2021 में इस बार आईआईटी मुंबई कंडक्ट करने जा रहा है, राइट? अब सवाल ये था कि देखते हैं कितना कितने मार्क्स का। यू कैन सी दैट कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट्स 9 मार्क्स का था, उसने कंसिस्टेंसी 8 मार्क्स का रखा। प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर 11 to 12 मार्क्स, राइट? आप ऑब्जर्व करते जाएंगे किस सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है अभी तक। ऑपरेटिंग सिस्टम which will be 4 to 3 marks, but might be it will be more position this time. Algorithm which is 22 marks and then 11 marks. Digital logic 14 then 5 marks. Computer organization 22 and then 15 marks. Next DBMS which is 11 and 9. TOC 14 5 11 6 for the compiler, and discrete mathematics 30 and the 9. So कंसिस्टेंसी अगर मैं 2013 को ऑब्जर्व करूं, बिकॉज इन बिटवीन गैप में काफी चीजें वेरिएशन होती है, तो मेरे सामने 2013 को देखो तो एप्टीट्यूड मार्क्स उसके अंदर एड ऑन हो जाते हैं, इसके पहले एप्टीट्यूड नहीं था। तो एप्टीट्यूड का 15 मार्क्स आपको कंसिस्टेंसी दिख रहा है, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का 9 मार्क्स जो आपको दिख रहा होगा, विच इज नियरली अराउंड 24 मार्क्स का, राइट? आगे देखते हैं। जो हमने ऑब्जर्व किया तो मुझे ये समझ में आया कि कौन कौन से पैटर्न से ये पता चला कि कौन कौन से हाईली वेटेज है। तो सबसे पहला निकल के आता डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विच इज हाईली वेटेज एग्जामिनेशन। दूसरा आता है अल्गोरिथम विच इज मोर हाईली वेटेज। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डीबीएमएस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऐसे वेटेज हैं जो पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कवर होते हैं, राइट? इवन नॉट इवन 2021, 2020 में भी ये सारे पैटर्न ये डोमिनेटिंग रहते हैं पूरे पेपर में, सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें कवर होता है। तो आओ शुरू करते हैं कुछ और डिटेल के बारे में कि हमें सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना चाहिए। ये वो बात हो गई कि हमें पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता सके कौन कौन से टॉपिक से गारंटीड क्वेश्चंस बनते हैं या वेटेज ज्यादा होते हैं। पहला मैंने टॉपिक लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें आईपी एड्रेसिंग का 2 मार्क्स क्वेश्चन हर साल आता है। आईपी फ्रेगमेंटेशन के भी हर साल ऑलमोस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से निकल के आता है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से गारंटीड क्वेश्चन आता है। इफ यू प्लानिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, बचपन से ही सिखाया जाता है जो पहले आता है वो पहले अटेम्प्ट करना रहेगा, राइट? उससे क्या होता है, हमारे मार्क्स सिक्योर होने लग जाते हैं। Algorithm में divide and conquer, asymptotic notation, sorting technique, this will be the high weightage. And also in terms of data structure, stack, queue, tree, graph, linked list, array, ये ऐसे टॉपिक है जो कभी भी आपको लाइफ लॉन्ग काम आ सकते हैं, इवन आपके कंपनी प्लेसमेंट हो या एनीवेयर, बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों सब्जेक्ट सबसे ज्यादा कोर माने जाते हैं। सी प्रोग्रामिंग भी पूछा जाता है, जिसके लिए आपको बुक रिकमेंड भी करूंगा आपको मैं।
सी प्रोग्रामिंग के लिए पॉइंटर और फंक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हर साल। सी प्रोग्रामिंग के 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन होगा सी प्रोग्रामिंग का, दे हैव प्रोवाइड द ऑप्शंस एंड यू टू टिक मार्क। नाउ DBMS, which is normalization, transition control, and the SQL, this will be the considered as a high weightage marks. Now अगला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज द शेड्यूलिंग टॉपिक, जो गारंटी 2 मार्क्स आपको देके जाएगा, यानी कि आंधी तूफान आ जाए लेकिन ये क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली होगा। और मैं आज के इस टॉपिक को सबसे पहले इसी तूफान को मैं सबसे पहले आपके सामने लेना चाहूंगा। नाउ अगला आता है मेमोरी मैनेजमेंट, दैट इज वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक which is comes in the gate examination, which is high priority. Now the scheduling algorithm, the next is the synchronization. Synchronization is one of the topic जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन के डाउट्स निकल के आते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एज ऑफ नाउ आप ये देख पा रहे होंगे कि ये सारे टॉपिक मैंने मेंशन किए जो आपके लिए हाईली वेटेज है। अगला निकल के आता है आपके पास COA। COA is one of the important subjects which is comes in a pipelining, cache memory, addressing mode. यहाँ पे अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप ले सकते हो। ये वो टॉपिक है जहां से अगर आप 25 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के भी देखेंगे तो इनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे, राइट। सो नाउ डिजिटल लॉजिक में K में बुलियन अलजेब्रा एंड द काउंटर्स, TOC में रेगुलर एक्सप्रेशन, FA, CFL, RL, TM, यू माइट बी सम सब्जेक्ट्स आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा या आपका करंट सेमेस्टर 5th सेमेस्टर हो सकता है तो उसमें पढ़ा होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कहीं ना कहीं रिलेट होंगे टॉपिक, अगर आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, या नहीं पढ़ा होगा तो आने वाले सेमेस्टर में ये अपकमिंग सेमेस्टर के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज कंपाइलर, लेक्सिकल एनालिसिस एंड द पार्सिंग, दिस वन ऑफ द टॉपिक। Next, the last most important, that discrete mathematics and the aptitude. Aptitude is a short that is 15 marks, वो guaranteed आता है, जिसमें including the English part also, that is synonyms, anonyms and the basic aptitude। अगर आपने common example में आपको बताऊं, that is very time and work, यहाँ से ग्राफ, इस सबसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा एप्टीट्यूड से निकल के आता है। डिस्क्रीट एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ग्राफ, सेट थ्योरी, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, these are the main important topics. So till now हमने पूरा के पूरा एक ओवरव्यू देखा है गेट के बारे में। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं एक चीज और ऐड करूंगा, इस बार MCQ के अलावा MSQ यानी कि मल्टीपल चॉइस आंसर आ चुका है। इसका मतलब आप लोग, MSQ का मतलब होता है यहाँ पे हम मल्टीपल सेलेक्ट करना पड़ेगा आंसर्स। अगर किसी क्वेश्चन के 2 आंसर्स होंगे, यू हैव टू गिव 2 आंसर, आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। इस बार दैट इज जो रेडियो बटन की जगह पे इस बार चेक बॉक्स मिलेगा आपको। इसका मतलब अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो 2021 यानी कि अपकमिंग, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। बिकॉज माइट बी एज ऑफ नाउ, अगर मुझे पता है कि आप लोग 3rd ईयर में हो तो आपके पास सिर्फ कुछ मंथ बचे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एग्जाम 22 में दूंगा, विच इज द एडवांटेज, अगर आपके पास हिट फ्री बॉल मिलता है, क्रिकेट में सबसे सुना होगा एक फ्री बॉल होता है, तो फ्री बॉल में कभी भी आपको आउट होने का डर नहीं होता है। तो अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आपको आउट होने का डर नहीं है, आप फ्री बॉल पे आगे बढ़ के हिट मार सकते हैं, और यही सबसे गोल्डन टाइम है जहां आप हिट मार सकते हो। 21 अगर आप लोग दे सकते हो, विच इज इन 3rd ईयर, और आपका टारगेट 22 है, तो आपके पास एक स्कोर कार्ड आपके लिए पॉकेट में एक एडवांटेज का काम करता है कि इफ यू गिव 100% this time, so might be you have giving the 200% of the next whole year, which will be got the top most rank in your career. नाउ शुरू करते हैं। मैं आज का जो टॉपिक उठाने जा रहा हूं, विच इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक डाले हैं। इस क्वेश्चन बैंक को मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, थोड़ा सा आपको डिटेल में भी लेके जाऊंगा इस टॉपिक के बारे में। मैं आपके सामने ऐसा नहीं करूंगा कि क्वेश्चन का आंसर दूंगा और खत्म हो जाएगा। आपके सामने प्रॉपरली मैं आपके लिए इस पूरी क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम लोग इसको जा सकते हैं। ओके just 2 minutes.
Now you have a first question on the screen. Yes, there is a first question on the screen. Let us consider the following statement about the process state time transition for a system using preemptive scheduling. In terms of preemptive scheduling, which of the statement is true? So there is a 4 statement आपके सामने दिया हुआ है, लेकिन सर आप ये बताओ सबसे पहले प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन होता क्या है, तभी मैं आपके सामने इस सवाल का आंसर समझ पाऊंगा. तो लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग और मैं आपको बोर्ड पे आपको बताना चाह रहा हूं. यू कैन सी दिस. कैन यू प्लीज स्टॉप द कैमरा एवरीबॉडी? Yes. So I hope I am visible properly and audio is fine. Everybody? Yeah, sir, you are visible. Yes. Yeah. Somebody please stop your camera so that. So, yes. So I will explain here the process state transition. The process state ट्रांजिशन या प्रोसेस स्टेट डायग्राम ये होता क्या है, तभी मैं इसके आने वाले 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं. तो आओ देखें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सो नाउ द फर्स्ट थिंग वी हैव अ स्टेट. जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ वेरियस स्टेट्स. व्हाट आर स्टेट्स आर देयर? दैट इज अ न्यू स्टेट्स, नेक्स्ट दैट इज रेडी स्टेट, नेक्स्ट दैट इज रनिंग स्टेट, and also the terminate state. So these are the states, and also we have, okay, that is a wait and the block state. That is the IO request and IO completion. Here is the scheduling, and here is a preemptive scheduling. Now शुरू करते हैं. सबसे पहले इस एग्जांपल में आई होप एवरीथिंग इज विजिबल प्रॉपर्ली. यस. नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे प्रोसेस स्टेट डायग्राम बताता क्या है. जब भी हमारे पास नई प्रोसेस क्रिएट होके आती है, व्हाट इज अ न्यू प्रोसेस? व्हेन जब भी नई प्रोसेस हमारे पास अराइव होती, फॉर एग्जांपल P1 P2 P3. एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ. जब भी हम कंप्यूटर में पहली बार माउस से कुछ क्लिक करते हैं तो एक नई प्रोसेस क्रिएट होती है. राइट? उस प्रोसेस को देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, टास्क मैनेजर में जाके देख सकते हो. इस टास्क मैनेजर में आपको एक विजिबल होगा आपका जितनी प्रोसेस आपकी रनिंग होती है. तो जब भी आप नंबर ऑफ माउस से क्लिक करते हो तो नई प्रोसेस क्रिएट होती है. वन ऑफ द न्यू प्रोसेस क्रिएटेड, और वो सारी की सारी प्रोसेस रेडी स्टेट में चली जाती है. ये सारी की सारी जब रेडी स्टेट में प्रोसेस आ चुकी होती है, यहाँ पे वन ऑफ द प्रोसेस, एक प्रोसेस को सिलेक्ट किया जाता है. ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि इन प्रोसेस को सिलेक्ट करना और शेड्यूल करना रनिंग स्टेट में. अब सवाल आता है कि रनिंग स्टेट क्या होता है? एक रनिंग स्टेट होता है जो सीपीयू टाइम होता है, जहां पे ये एग्जीक्यूशन हो रहा होता है. एक प्रोसेस को हम लोग बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, जहां पे उसको बोलते हैं रनिंग स्टेट. नाउ वन ऑफ द प्रोसेस सिलेक्ट होगा और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में रनिंग स्टेट में जाएगा, और ये रनिंग स्टेट में प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गाना प्ले करना है, तो गाना प्ले होते होते क्या होगा, गाना प्ले होने के बाद यहाँ पे रनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होगा. नाउ हियर वन ऑफ द प्रोसेस इस सिलेक्ट होने के बाद अगर इसको आईओ की रिक्वेस्ट होगा, आईओ रिक्वेस्ट यानी कि हो सकता है इसको स्पीकर और माउस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उस माउस और स्पीकर के लिए मैं क्या करूंगा, ब्लॉक स्टेट और वेट स्टेट में जाऊंगा. अब ब्लॉक स्टेट और वेट स्टेट में जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये आईओ की रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी, और आईओ की रिक्वेस्ट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद मैं रेडी स्टेट में जाऊंगा, और फाइनली रेडी से रनिंग, रनिंग से न्यू प्रोसेस में टर्मिनेट हो जाऊंगा. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस स्टेट डायग्राम. ओके, नाउ हम लोग वापस क्वेश्चन पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस जो मैंने सामने डायग्राम बनाया है, उस पे मैं आपको एक आंसर देना चाहूंगा. हमारा जो क्वेश्चन था, लेट मी शेयर द वन क्वेश्चन अगेन. If you know that, मेरे सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ, वापस से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले the first statement, a running process can move to ready state. क्या कोई भी रनिंग प्रोसेस, रेडी प्रोसेस जो भी होता है, क्या वो मूव में जा सकती है? रनिंग स्टेट प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट, यस या नो? यस, जा सकती है. अगर आप प्रीएम्प्ट करते हो, देखिए प्रीएम्प्ट करोगे तो वापस जा सकती है. यू कैन ड्रॉ, आई कैन ड्रॉ लाइक दिस हियर, दैट इज न्यू प्रोसेस, that is our ready process, right? ready से हम कहाँ जाएगी, ready के बाद जाएगी running में, running के बाद जाएगी हमारे पास next
टर्मिनेट होके जाएगी और एंड सो ऑन. सो दिस विल बी पॉसिबल. न्यू, रेडी एंड रनिंग एंड ऑल्सो द वेट स्टेट. सो दिस वुड बी पॉसिबल. तो ये क्या हो सकता है, रनिंग से रेडी में जा सकती है, हाँ जा सकती है. देखिए हम पीछे वापस प्रोसेस को भेज सकते हैं. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू आ चुका है. नाउ द सेकंड वन, a ready process can move to ready state. A ready process can move to ready state. Definitely एक ready process दोबारा ready में जा सकता है. Definitely possible जा सकता है. Next हमारे पास आता है block process can move to running state. यानी कि हमारे पास एक block process आता है, राइट, इसको हम wait process भी बोलते हैं. क्या ये block process या wait process क्या ये रनिंग में जा सकता है? क्या ये रनिंग में नहीं जा सकता. कभी भी ये प्रोसेस हमेशा यहाँ आ सकता है और यहाँ जा सकता है. We cannot go back directly. So this could be not possible at all. The third statement. Next, the block process can move to ready state. Yes, ये जो block process होता है ये ready state में जा सकता है. Yes, arrow is there. So definitely this one also true. So again, the answer could be 1, 2 and 4. So answer number D is right. It is asked in the 2020 GATE examination. Yes, it is comes in the 2020 GATE examination में पूछा गया है हमारे सामने और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का पूछा गया है, राइट. सो ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हो गया हमारे सामने. ओके, किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट होता है मुझसे पूछ सकता है. सो नाउ इस टाइप के क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में. एक और हम एग्जांपल लेते हैं, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी शेयर. Yes. Now the next process, you can see that same diagram is available. ये क्वेश्चन 2012 के आसपास पूछा गया था. सेम क्वेश्चन का पैटर्न है. इन द फॉलोइंग प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन फॉर एन यूनिप्रोसेसर सिस्टम assure that there are always some processes in the ready state. Okay, now the following points are considerable. क्या क्या points consider करने के लिए बोला है? Now let me read this point. Now सबसे पहले इनका निकल के आता है, हमारे सामने क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है और आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट. तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट. इफ ए प्रोसेस, अगर एक प्रोसेस है यानी कि एक प्रोसेस है, मेक अ ट्रांजिशन डी, अगर वो प्रोसेस ट्रांजिशन डी परफॉर्म कर रहा है, इट कुड बी रिजल्ट अनदर प्रोसेस मेकिंग ट्रांजिशन ए. तो क्या उसका दूसरे प्रोसेस पे कोई ट्रांजिशन होगा उसके रिजल्ट पे? क्या मुझे एक बात बताओ, ये तो वो बात हो गई कि आप माय कंप्यूटर खोल रहे हो, गाना प्ले कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस ड्यूरेशन में जो हमने गाना कैसे क्लोज किया है तो सडनली नया वाला वर्ड डॉक्यूमेंट खुल जाए. ऐसा होता है क्या कभी? क्या दो प्रोसेस आपस में ओपनिंग और क्लोजिंग पे डिपेंड हो सकती है कभी? नेवर एट ऑल. यानी कि कोई नई प्रोसेस स्टार्ट करना हो और किसी को टर्मिनेट करना हो, क्या इन दोनों का रिलेशन पॉसिबल है? No, because these are not possible. So statement number 1 is false. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला स्टेटमेंट, a process P2 in the block state. सपोज करो एक प्रोसेस P2 है, वो ब्लॉक स्टेट में बैठी हुई है. अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर थोड़ा सा मुझे फिर से बताओ ये ब्लॉक प्रोसेस क्या होता है, शायद आपने बोर्ड पे ध्यान नहीं दिया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ. स्टार्ट का मतलब होता है जब भी यूजर कोई भी क्लिक करके ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कि हमारे विंडो में जब भी कोई क्लिक करते हो तो कोई भी प्रोसेस क्रिएट होती है तो यहाँ से क्रिएट होती है स्टार्ट से, और वो सारी की सारी प्रोसेस कहाँ जाके स्टोर हो जाती है? रेडी स्टेट में. यानी कि कहाँ जाके रेडी स्टेट में जाती है? जितनी प्रोसेस आती चालू हो जाती है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं करती. सर एग्जीक्यूशन माने क्या हो सकता है? एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करना, रन करना, राइट. तो कोई भी प्रोसेस को रन करने के लिए हमें उस प्रोसेस का स्टेट चेंज करना पड़ेगा, वो रनिंग स्टेट में लाना पड़ेगा. तो यहाँ पे वो एग्जीक्यूशन चालू हो जाता है. अगर किसी प्रोसेस को ब्लॉक स्टेट, अब ब्लॉक का मतलब यहाँ पे समझना, ब्लॉक का मतलब होता है एग्जीक्यूशन रुक जाता है लेकिन वो कुछ और काम करता है. ब्लॉक का मतलब जैसे हमने व्हाट्सएप में ब्लॉक किया वो नहीं होता. ब्लॉक का मतलब होता है जो ऐसी प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है या उसका आधा पार्ट हो चुका है लेकिन वो आईओ की रिक्वेस्ट के लिए वेट कर रहा है. आईओ का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट के लिए. अभी इनपुट आउटपुट क्या होता है सर?
जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कोई भी प्रोसेस के लिए कोई रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने गाना प्ले करने के लिए किया, आपने लाइव एग्जांपल देखते हैं, माय कंप्यूटर में आप खोलोगे, आपने कोई MP3 फाइल ओपन की, आपने डबल क्लिक किया, आपका गाना बहुत देर तक एग्जीक्यूशन हो रहा होता है कंप्यूटर में, लेकिन आवाज नहीं आती, might be required 1 or 2 seconds, yes or no? So now this required आपका एग्जीक्यूशन चालू हो जाता है, लेकिन आपको IO नहीं मिलता। IO मतलब इनपुट आउटपुट। The reason behind is operating system is to manage all the resources just like a boss. तो जितने भी resources होते हैं, operating system क्या करता है, resources को manage करता है। तो यानी कि resources को manage करने के लिए मुझे IO is one of the resources। या कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बिना नहीं चल सकता है, राइट? नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ इसका मतलब ये होता है कि जितने भी रिसोर्सेस होते हैं वो आईओ रिसोर्स के लिए मुझे ब्लॉक स्टेट में बैठना पड़ेगा। जैसे ही मुझे आईओ यानी कि स्पीकर मिल जाता है, मैं रेडी स्टेट में वापस जाऊंगा और रेडी के बाद वापस रनिंग में जाने के बाद एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ देर के बाद टर्मिनेट हो जाऊंगा। समझना है सबको? ना आगे बढ़ते हैं। सर क्या एक सवाल आता है अपने दिमाग में, सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो बता रहे हो सर, इसका मेरे को थोड़ा बेसिक जानना है, इसकी पूरी कहानी जानना थोड़ी सी, क्या ये हम अभी ऐड ऑन कर सकते हैं? यस। तो सबसे पहले एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। हमारे पास क्या होता है, यूजर्स होते हैं, हमारे जितने भी यूजर्स होते हैं, राइट, वो हमेशा क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। जितने भी यूजर्स होते हैं वो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं बाय सिस्टम कॉल या फंक्शन। अगर मैं कहूं मैं माउस के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता हूं, या कोई सिस्टम कॉल, या आपने सी प्रोग्रामिंग आपने किया होगा तो आपने प्रिंटफ स्कैनर चलाया होगा, राइट? तो प्रिंटफ स्कैनर इज वन ऑफ द फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, राइट? अब ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ये रिक्वेस्ट आती है किसके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो रिक्वेस्ट आती है वो जाती है किसके पास, हार्डवेयर के पास। अब ये हार्डवेयर क्या करते हैं, जितने भी हार्डवेयर होते हैं दीज आर कॉल्ड एज द रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के लिए ये सब आईओ रिक्वेस्ट हो सकती है, मेमोरी रिक्वेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि यूजर चाहता है कि मैं हार्डवेयर से कम्युनिकेट करूं तो मुझे उसको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करना पड़ेगी, फिर हार्डवेयर से बात करेगा, फिर हार्डवेयर जो हमें अलोकेट होगा वो मुझे अलोकेट हो जाएगा, वो मुझे अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे। चलो काफी हमने बेसिक को समझा, आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट आई थिंक सबको समझ आ गया, डिपेंडेंट वाला नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट में जाते हैं। अ प्रोसेस P2 इज इन ब्लॉक स्टेट। अगर एक प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल है तो क्या ट्रांजिशन ई देखो जरा क्या है, ट्रांजिशन ई व्हाइल अनदर प्रोसेस P1 इज इन रनिंग स्टेट, क्या दूसरी प्रोसेस यहाँ आ सकती है? यस और नो? यस। कैसे? इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में रिसोर्सेज का वेट कर रही है तो क्या दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकती है क्या? यस, ऑब्वियसली बात है। लेकिन सर इज इट नेसेसरी कि यहाँ पे जो रनिंग स्टेट होता है वहां पे केवल एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? इज इट ट्रू? यस। तो सर मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हुआ? हमने कंप्यूटर में सब मल्टीटास्किंग करते हैं ना, तो यहाँ पे आप बोल रहे हो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी तो रनिंग मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हुआ सर? फिर इसका मतलब मैं एक हाथ में वड़ा पाव लेके बैठा हूँ, एक हाथ में चाय लेके बैठा हूँ, तो उसका मतलब आप मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों एक साथ खा सकते हो? नो, राइट? आपको थोड़ा सा बाइट वड़ा पाव लेना पड़ेगा, इमीडिएटली चाय पीना पड़ेगी, फिर वड़ा पाव फिर चाय, वड़ा पाव फिर चाय। इसका मतलब जितना फास्ट आप करोगे आपको लगेगा मल्टीटास्किंग कर रहे हो। इसका मतलब ये रेडी स्टेट में प्रोसेस जब भी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएगी वो यहाँ पे रनिंग होने आ जाएगी, कुछ नैनो सेकंड के लिए चलेगी, फिर प्रोसेस वापस से बैठ जाएगी और रेडी स्टेट में जाके बैठ जाएगी, फिर दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब ये स्विचिंग इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है, we cannot imagine हमारा सिस्टम। अगर आप टास्क मैनेजर को ओपन करके देखोगे तो आपने देखा होगा हर एक प्रोसेस के सामने कुछ हमेशा साइजेस वेरी हो रहा होगा, बार बार आपको फ्रीक्वेंटली दिख जाएगा। इसका मतलब मल्टीटास्किंग का मतलब होता है मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग ड्यूरिंग द रनिंग प्रोसेस बट टाइम शेयरिंग मोड। अब टाइम शेयरिंग मोड का मतलब होता है कुछ टाइम तुम चलना, कुछ टाइम मैं चलूंगा और दोनों एक साथ इतना फास्ट चलेंगे कि हमें लगेगा एक साथ चल रहा है। कुछ कुछ आ रहा है,
समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसको बारे में और डिटेल में भी जाएंगे। नाउ अगला स्टेटमेंट हमने देखा, अगर P2 कोई प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में जा रही है तो P1 रनिंग में जा सकती है। यस, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ सकते हो, हमने आपको कोई ऑब्जेक्शन उठाया। थर्ड, OS यूजेस द प्रीएम्प्टिव, या चौथा ऑप्शन है OS यूजेस द नॉन प्रीएम्प्टिव। इसमें बहुत बड़ा लोचा है। कैसे लोचा है? इस स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा लोचा क्या है कि अगर कोई OS प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग फॉलो करता है, प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है जो प्रोसेस प्रीएम्प्ट करती है। प्रीएम्प्ट का मीनिंग होता है कि कोई भी रनिंग प्रोसेस को बीच में हम डिस्टर्ब करते हैं, उसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव। यानी कि आप चाय पी रहे हो आराम से, आप बीच बीच में कुछ और भी खा रहे हो, इसका मतलब आप अपने काम को डिस्टर्ब कर रहे हो किसी और के साथ, इसका मतलब होता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझूं, थोड़ी देर के लिए कुछ प्रोसेस यहाँ पे कुछ चल रही है, फिर दूसरी प्रोसेस चल रही है, फिर वापस से पहली आ रही है, यानी कि 1 2 2 1 1 2 2 1 समथिंग लाइक स्विचिंग हो रहा है, तो उसका मतलब हो रहा है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज हो रही है। यानी कि जो भी हमारे के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है, बीच बीच में दूसरी प्रोसेस आके उसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव, यानी कि इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। सो अगर मैं यहाँ पे ये वाला ट्रांजिशन, सी वाला ट्रांजिशन बैक दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होगा? जो ये डिस्टर्ब ही नहीं करे, ये वाला ट्रांजिशन नहीं हो, सिर्फ जाने का हो, और इसका मतलब कोई बीच में डिस्टर्ब न करे, एग्जीक्यूट करे, टर्मिनेट करे, खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव, जो कि फिलहाल इस डायग्राम में नहीं है। तो अगेन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारे लिए फॉल्स। तो मैं देख पा रहा हूं मेरा ऑप्शन बी और 3 वाला सही गया है, तो मुझे जो ऑप्शन लग रहा है दैट इज सी इज द राइट आंसर। सोचो, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जो आपने चुटकी भर बजाते से ही खत्म कर दिया, तो सोचो आने वाले टाइम में कितने क्वेश्चन हम लोग खत्म कर पाएंगे। चलो, ये तो मैंने 2 क्वेश्चन और बताए, 2 क्वेश्चन बताए, और भी मैं बताऊंगा। अभी इतनी जल्दी मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूं, आपको थोड़े मन में तसल्ली लेके जाएंगे कि सर क्वेश्चन का सॉल्व करने का पैटर्न हमें समझ में आया, लेकिन सर एक हम जानना चाहते हैं, सर ये आपने दोनों क्वेश्चन बताए, हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताए, लेकिन सर जैसा कि आप लोग जानते होंगे गेट में सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो सर एक आध कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाए क्या? क्या कहते हो सर? एक आध कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाए डेमो क्लास में, ओपनिंग में, कुछ ऐसा सर एकदम मजा आ जाए, जैसे करने में, जैसे मैथमेटिक्स टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सर कंप्यूटर में भी न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, क्यों ना हम एक ऐसा धमाकेदार क्वेश्चन उठाए जो थोड़ा पसीना आ जाए सॉल्व करने में, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाए या कैलकुलेशन करना पड़ जाए। आओ शुरू करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, हमारे सामने एक और टॉपिक, क्योंकि मैंने आज का टॉपिक रखा था सीपीयू शेड्यूलिंग टॉपिक रखा है, तो मैं आज सीपीयू शेड्यूलिंग को ही टारगेट कर रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को, जो मैंने कहा था 2 मार्क्स के क्वेश्चन के पैटर्न्स बनते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके सामने दिख रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ द अराइवल टाइम एंड द बर्स्ट टाइम ऑफ द 3 प्रोसेस। आपके सामने एक टेबल देके रखी है, इस टेबल में आपके सामने 3 चीजें देके रखी है, राइट? आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर पहला जो नाम देके रखा है विच इज प्रोसेस का आईडी या प्रोसेस का नंबर। हमारे सामने P0 नाम की प्रोसेस, P1 और P2 नाम की प्रोसेस दी हुई है। बाजू में हमारे सामने अराइवल टाइम देके रखा है। अराइवल टाइम का मतलब होता है किसी प्रोसेस का आने का टाइम। जैसे आप लोगों ने सुबह कॉलेज में ज्वाइन किया, आप सुबह 9 बजे कॉलेज स्टार्ट होता होगा, तो आप हो सकते हैं 9 बजे पहुंचे, 9:05 पहुंचे, या उसके बाद 9:10 पहुंचे, यानी कि सीक्वेंशियल आप आते जा रहे हो। वैसे ही कोई भी प्रोसेस जब भी आप माउस से क्लिक करते हो तो होता क्या है, प्रोसेस का आने का टाइम होता है, अराइवल का टाइम होता है, इट इज कॉल्ड अराइवल टाइम। दूसरा, अगर आप बाजू में देखोगे तो यहाँ पे दूसरा देके रखा है विच इज बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम इज नथिंग बट अ सीपीयू टाइम भी कहा जाता है, जो कि मैंने अभी आपको रनिंग स्टेट में दिखाया था, जो एग्जीक्यूट होने का टाइम जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बर्स्ट टाइम, राइट? Now, the burst time is nothing but a CPU time, यानी कि P0 कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट हुआ, P1 हो सकता है 4 सेकंड यानी कि नैनो सेकंड, सॉरी दैट इज मिली सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ,
और तीसरा हमारे सामने जो एग्जीक्यूट हुआ है 9 मिलीसेकंड के लिए, राइट। हमारे सामने ये पूरा डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ने हमें बताया है कि आगे करना क्या है। तो क्वेश्चन अगला बोलता है द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड। इसका मतलब सर टोटल कितनी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो हमें जानना है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, टोटल जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं वो होती है हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दूसरा होता है हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, राइट, राउंड रॉबिन, राइट, एंड द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ये सारी की सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं जो सबसे ज्यादा गेट में पूछी जाती है। सर लेकिन अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब या ये तो नहीं कहना चाहते जो पहले आई वो पहले एग्जीक्यूट होगी? यस, जो पहले आई है अगर वो पहले एग्जीक्यूट होगी, यही हमारा मोटो है यहाँ पे। नाउ तो सर निकालना क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा है मुझे व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ दी 3 प्रोसेस। तो यानी कि सर तीनों का मुझे एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो इसका मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। सर आपने लेकिन ऑप्शन नहीं दिया, ये अच्छा नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं आता, उसको फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं हम लोग, राइट, या इसको हम NAT बोलते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यानी कि जो भी वैल्यू होगी आपको 2 डेसिमल अब तक एंटर करना पड़ती है, राइट। चलो शुरू करते हैं। अगर आप नोटबुक पेन बुक नहीं लेके हुए बैठे हो तो भी आपको देखते देखते सॉल्व हो जाएगा। आपके सामने मैं बोर्ड पे आ चुका हूं, राइट। आपको सभी को बोर्ड विजिबल होगा, आई होप सो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो विजिबिलिटी में तो प्लीज अपडेट कर सकते हो। यस, मेरे सामने प्रोसेस देके रखा P0 P1 P2, जो मैंने क्वेश्चन किया था वही मैंने आपके सामने लिख दिया है 0 1 2 एंड अराइवल टाइम विल बी द 0 1 2, बर्स्ट टाइम विल बी 9 4 9, जो मैंने क्वेश्चन गिवन था, राइट। मुझे निकालना है वेटिंग टाइम, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कौन कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थी। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो मुझे इस पे सॉल्व करना है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होती है, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन प्रायोरिटी। मैं इन सब पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ अभी एक ही है, विच इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नाउ शुरू करते हैं। सर वेटिंग टाइम मतलब ये कहना चाह रहे हो जो सीपीयू के अंदर वेट करना पड़ा, यानी कि सर एग्जीक्यूट नहीं करेगी तो बाकी टाइम क्या करेगी प्रोसेस? हो सकता है वेट कर रही हो सकता है आईओ का वेट कर रही हो, कुछ भी कर रहे हो, इसका मतलब वहां पे उसको टाइम लगेगा और उस टाइम को बोलते हैं वेटिंग टाइम। इसको निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले कंप्लीशन टाइम, जैसे बोलते हैं CT, दिस इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम। हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पे हैं तो डेफिनेटली मुझे एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कंप्लीशन टाइम निकालने के बाद मुझे निकालना पड़ेगा टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब होता है, इसको बोलते हैं कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। उसके बाद आता है हमारे पास, अच्छा ये क्या बोलना चाहता है, टर्न ऑन टाइम का मतलब होता है वो टाइम जो प्रोसेस कंप्लीट होना और आने के बीच में जितना टाइम वो कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूशन में पार्ट हो रही हो या आईओ की काम कर रही है, उसको बोलते हैं टर्न ऑन टाइम। यानी कि मैं आया, मैंने 10 मिनट काम किया लेकिन मैं वहां पे बैठा रहा वो सारा टाइम। तीसरा आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब निकालने का तरीका होता है जो हमारा टर्न अराउंड टाइम था उसके साथ हम सबट्रैक्ट कर देंगे। द वेटिंग टाइम इज नथिंग बट टर्न अराउंड टाइम माइनस का बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस का बर्स्ट टाइम, दिस टाइम इज कैलकुलेटेड। यानी कि अगर आप बर्स्ट टाइम हटा दो तो जितनी देर आप बैठे हो वो टाइम आ जाएगा वेटिंग टाइम। चलो शुरू करते हैं, खेल शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे गेन चार्ट बनाना पड़ेगा। अब गेन चार्ट क्या होता है आप देख लेते हैं यहाँ पे। द गेन चार्ट विल शो द कितना टाइम तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। तो सबसे पहले इनिशियल 0 टाइम पीरियड पे कोई प्रोसेस हमारे सामने अराइव हुई क्या, चेक करो। यस सर P0 आ गई थी, इसका मतलब 0 अराइवल टाइम पे P0 प्रोसेस आई थी अकॉर्डिंग टू द शेड्यूलिंग दैट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। इसके बेसिस में जिसका अराइवल टाइम कम होगा या पहले होगा हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। कितना एग्जीक्यूट करेगा? 9 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। तो सर 9 ऐड कर दो, यस 9 ऐड कर दो। अगला प्रोसेस आता है P1। अगला अराइवल टाइम देखो कितना आ गया, क्लॉक टाइम में कितना है 9, इसका मतलब 1 आ गया, 2 भी आ गया। लेकिन सबसे छोटा सबसे पहले कौन आया, फर्स्ट कौन है, सबसे पहला कौन है, P1, क्योंकि P0 तो हो चुका है। P1 P2 में से कौन पहले आएगा, P1 पहले आएगा। नाउ अगला नंबर आ गया P1, कितनी देर एग्जीक्यूट होगा, 4। कितना हो गया हमारे सामने, 13। टाइम टोटल कितना हो गया, 13। नाउ द लास्ट वन P2 आया, राइट, बहुत ज्यादा बना दिया मैंने गेन चार्ट। P2 आया, कितना टाइम चला देखो ध्यान से, कितना टाइम,
9। क्या मैं ऐड कर दूं यहाँ पे? यस, कितना हो जाएगा? 21। चेक करो, टोटल में गलती नहीं होना चाहिए, सॉरी 22 आएगा। यस, क्लियर है? इसका मतलब सर कंप्लीशन टाइम आप ये बोलना चाहते हो इन प्रोसेस का कितना टाइम में कंप्लीट हुआ? क्लॉक क्लॉक क्लॉक, यानी कि सर P09 में कंप्लीट हुआ, देखो आते से ही कंप्लीट हो गया। हाँ, P1 कब कंप्लीट हुआ सर? 30, यानी कि इन दोनों की मिला के टाइम 30 हुआ। मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं ये गेट चार्ट से पता करूंगा, मेरा काम कैलकुलेशन नहीं है, मैं प्रोसेस को फॉलो करता हूं। नाउ अगला P2 कब कंप्लीट हुआ देखते जाओ जरा। P2 कंप्लीट हुआ 22 क्लॉक साइकिल टाइम में। नाउ अभी मेरे सामने आ गया टर्न ऑन टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कितना टाइम? 9। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 12। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 20। चेक करते जाओ। नाउ अगला आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा? जितना टाइम आप रहे और जितना टाइम आपने काम किया, जो बचा हुआ टाइम था वो वेटिंग टाइम। कितना बचा? आते से पहला ही काम पे लग गया 0। हाँ। दूसरा 12 तक है वो बैठा रहा सीपीयू के अंदर, 4 उसने एग्जीक्यूट किया, बाकी टाइम क्या किया? वेट किया। कितना किया? 8 किया। अगला 20 टोटल टाइम जितना वो आया, आने और जाने कंप्लीट होने का टाइम 20 था, यानी कि कितना हो गया? 9 उसने एग्जीक्यूट किया। फ्री कितनी देर बैठा रहा? 11 बैठा रहा, फुर्सती था ये तो, राइट? अब इसको मतलब क्या, वो जो लेट आया वो ज्यादा टाइम बैठने को मिला। इसका मतलब मेरे सामने आंसर आ चुका है, मुझे करना क्या है? क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है एवरेज वेटिंग टाइम बता दो, तो उसका मतलब सर क्या हम उसको टोटल कर दें? कितना आ जाएगा? 19। हाँ के ना चेक करो, क्या 19 एवरेज निकालेंगे? 19/3 कर दूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 19/3, दैट इज अवर आंसर। आया? यस, इसको पॉइंट में जो भी आंसर आएगा वही एनएटी कहलाता है। एनएटी का मतलब होता है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर पुट करने का होता है। डिवाइड करके आंसर डालेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा था क्वेश्चन? यस, थोड़ा यार लगा, यार पसीना आया सॉल्व करने में। यही हमें चाहिए, यही गेट का पैटर्न है न्यूमेरिकल। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, हमारा सिर्फ आज का टॉपिक सीपीयू सोल्विंग है। सर एक और क्वेश्चन हो जाए सर, थोड़ा मजा आया, देख के अच्छा लगा सर। ऐसा एक और धमाकेदार क्वेश्चन हो जाए क्या सर? एक और क्या कहते हो? हाँ या ना? शुरू करें एक और क्वेश्चन? चलो स्क्रीन को मैं स्टॉप करूंगा, फिर से स्क्रीन को शेयर करता हूं। मेरे सामने जो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा। वापस से मैं आता हूं, मेरे सामने टोटल अगेन मेरे पास एक क्वेश्चन निकल के आता है, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं रख रहा हूं, विच इज भाई क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन मैं रखूंगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर 3 CPU intensive processes which require 10, 20, 30 units and arrival at the time 0 to 6, यानी कि एक सेम टाइप का क्वेश्चन है सर। इसका मतलब 10, 20, 30 सर ये तो टाइम हो गया, यानी क्या बर्स्ट टाइम बोल रहा है? हाँ के ना? यस सर। इसका मतलब दूसरा 0 to 6 बोल रहा है। यस 0 to 6 हो गया, यानी कि अराइवल टाइम हो गया। अब आगे क्या पूछना चाह रहा है? हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस आर नीडेड? कितने कॉन्टेक्स्ट स्विचेस रिक्वायर्ड है इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट शॉर्टेस्ट जॉब टाइम शेड्यूलिंग? आओ देखते हैं। यानी कि हमारे सामने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्या एल्गोरिथम बदल गया है? हाँ के ना? यस, एल्गोरिथम पूरा की पूरा बदल गया है। इस बार हमारे सामने जो एल्गोरिथम्स आए हैं उसका नाम दिया है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। ओके ना, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास सेम प्रोसेस का नाम रखूंगा P0, P1 एंड P2। अराइवल टाइम मेरे सामने देके रखा है which is 0 to 6 और बर्स्ट टाइम देके रखा है 10, 20, 30। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, ये सारे के सारे गेट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, राइट? कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, ये सारे के सारे गेट क्वेश्चन है। आओ देखते हैं ना। फिर से स्क्रीन को मैं स्टॉप करता हूं आखिरी बार और आपके सामने बोर्ड पे फिर से मैं क्वेश्चन देना चाहता हूं। ये वाला मेरे सामने वैल्यू जो देखी रखी क्वेश्चन में 0 to 6 था, बर्स्ट टाइम 10, 20, 30 हो चुका है। नाउ व्हाट वी डू हियर, हमारे पास फिर से हमें गेन चार्ट बनाना पड़ेगा और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचिंग पूछ रहा है कितना होगा। नाउ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है? जब भी एक प्रोसेस से दूसरे बीच में स्विच करते हैं उसे कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग।
यानी कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करते हैं। यानी कि मेरे हाथ में एक में वड़ा पाव है, एक में मैं चाय पी रहा हूं, अगर मैं स्विच कर रहा हूं इसका मतलब अगर मैं दो चीजों को चेंज कर रहा हूं इट्स कॉल्ड मैं स्विच कर रहा हूं, उसको बोलते हैं स्विचिंग टाइम। नाउ देखते हैं सबसे पहले अराइवल टाइम 0 पे कौन सी प्रोसेस आती है। सबसे पहले P0 आती है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब होता है जिसका टाइम कम होगा वो हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, जिसका टाइम कम होगा वो हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। किसका टाइम दिख रहा है? बर्स्ट टाइम P0 का। सोन पहले आने वाली है, 0 पहले आने वाली, यानी कि P0 सबसे पहले आएगा। कितना टाइम चलेगा? 10 टाइम चलेगा, राइट? मैंने 10 टाइम चला दिया। नाउ अगला प्रोसेस आता है अराइवल टाइम। सारी प्रोसेस अराइव हो चुकी है, इसका मतलब मैं P1 प्रोसेस चलाऊंगा। अगली प्रोसेस कितना टाइम चलेगा? 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30। चेक करते जाओ। नेक्स्ट P2 आता है, फिर से कितना टाइम चलेगा? 30। P2 चला कितना? 30 60 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से वन मोर टाइम। क्या बोलना चाह रहा है? अराइवल टाइम देके रखा है मेरे सामने, तीन प्रोसेस आ चुकी है P0 P1 P2। इन सबका बर्स्ट टाइम 10 20 30 है। शेड्यूलिंग है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसका मतलब जिसमें कम टाइम लगेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगी। पिछली बार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, जो पहले आई थी उसके बेसिस में था। इसने क्या बोला? जिसमें कम टाइम लगेगा उसको हम पहले देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे सामने जो अराइवल सबसे पहली प्रोसेस आती है 0 टाइम पे, P0 आता है, इसका टाइम 10 है। मैंने 10 टाइम चलाया, तो इन दोनों के बाद चेक किया किसका सबसे कम टाइम लग रहा है, उसने बोला 20 का, इसका मतलब P1 का। तो P1 चलाया, कितना चला? 20 ऐड कर दिया। फिर P2 चलाया, इसका मतलब 30 ऐड कर दिया, which is 60। तो नाउ हमारे सामने जो टोटल टाइम कंप्लीशन टाइम आ जाएगा, ये एग्जामिनर ने नहीं पूछा है, लेकिन हम एवरेज वेटिंग टाइम ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना है तो। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है? नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितने होंगे? नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितने हैं हमारे पास? तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब होता है मेरे हाथ में एक बार वड़ा पाव है, एक बार मेरे पास चाय है, और कितनी बार मैं स्विच कर रहा हूं, इसका मतलब P0 से P1 स्विच किया तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच नंबर 1। इन दोनों के बीच में देखो P1 P2 अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब फिर से स्विच हुआ, इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विच नंबर 2। क्या इसमें स्विच हो रहा है क्या? नो। क्या दूसरा कोई प्रोसेस है इधर? नहीं। क्या इसमें कोई स्विच हो रहा है क्या? नो। तो टोटल कॉन्टेक्स्ट स्विचेस कितना हो गया? द टोटल आंसर कुड बी द 2 इज द राइट आंसर। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन, यू कैन सी दिस। Now, option नंबर क्या दिख रहा है हमारे सामने? Your options is B is the right answer. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। Now, अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 क्वेश्चन हमने देखे। आगे हम देखते हैं कि कैसे हमें अपीयर करना है, कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं अपीयरिंग। जो पर्सन अभी जो बच्चे 2021 का प्लानिंग करने वाले हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, यू हैव अ सफिशिएंट टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ, राइट? अगर आपको क्या करना पड़ेगा, डेली आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, प्रिपरेशन करना पड़ेगी 5 to 6 आवर, और डेफिनेटली आपको एप्टीट्यूड मैथ्स में ज्यादा फोकस करना है। इफ यू हैव टारगेट फॉर द 2021, if you have a target for 2022, you have almost 1.5 year, which is you have to learn in depth by the classroom, during the books, and also the preparation required daily 2 to 3 hours, so which will be very helpful to 2022, but you have a chance, you can also appear for 2021 also. Now practice aptitude maths daily basis, which is more sufficient because 25 marks जो हमने कैलकुलेट किए थे वो aptitude और maths से ही कवर होते हैं। Now आगे बढ़ते हैं, what can be achieved with a high score? अगर आपके दिमाग में आता है कि सर हम PSU प्लान कर रहे हैं या हम क्या अचीव कर सकते हैं टॉप स्कोर से, तो हमारे पास सबसे ज्यादा आता है टॉप स्कोर, जो अगर आपके पास आता है तो which is IIT SC, ISC, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IISc खड़गपुर, ये सारे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं जो आपको सबसे ज्यादा पैकेज प्रोवाइड करेंगे। Also, if you planning for the PSU, if you score the top rank, so definitely you can go for the various PSU which is available on the screen, ONGC, IOCL, NTPC, GAIL and etc. कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो अलग से पैटर्न होता है, जैसे फॉर एग्जांपल DRDO, बार्क, इसरो, ये एक अलग टाइप के होते हैं, और ऑल्सो अब रिसर्च में भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। If you planning for the integrated PhD, that is also the GATE score is mandatory part.
Now, apart from the colleges, अगर स्कोर कितना आ रहा है, आपको क्या मिल सकता है? If you planning for the, अगर आपको कंसीडर किया जाए आपको more than 65 marks अगर आपको आते हैं, you can go with the IIT and ISC. Some colleges also come in the 55 to 60 marks. And if you're planning for the PSU, which will require more than 65 marks, and NITs या NITs और national level institute के लिए you have to require the range of the minimum 45 to 55, which will be required for the NITs. And the private sector, you could be required any particular score which will be helpful to you. And the private college के लिए आपके पास score card भी अगर आता है which is less than or that is 35 marks अगर आपको greater आता है तो which could be better for the admission in the private college. But I suggest you always target for the IIT and IISc and the last NITs. So now, how to study means how to plan for the preparation, कैसे strategy बना सकते हैं. Now, first thing you have to planning for the time management. अगर आपका time management है, believe me, you definitely crack the examination. Practice all the last year, previous year question. जितना practice करोगे again, 2-3 times, definitely it will be increase your analytical thinking and your logics. Read notes, whatever the you जो भी class notes होते हैं, which is very very important, वो आपके syllabus पूरा cover करते हैं, जिसके basis पे आपके लिए advantage होता है. Next, subject with the easy subjects. Start with the easy subject. जो सबसे ज़्यादा easy subject है, आपको favorite subject है, हमेशा उससे start करना चाहिए. और practice कर सकते हो last में mock test के लिए जब आपका examination almost close आने वाला होता है. Now, the next part, which is very very important, best time to study. कैसे आपको पढ़ना है? सबसे पहली बात आती है train your brain. अगर आपने देखा होगा, अगर आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, अगर आपने देखा होगा एग्जाम का टाइम होता है which is 10 o'clock to 1 PM और 2 से 5. ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो लेट नाइट तक जगते हैं लेकिन सुबह लेट उठ पाते हैं, उनका ब्रेन ट्रेन नहीं हो पाता. यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि अगर AI और ML पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, तो आपको एक आर्टिफिशियली आपको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है. जितना अच्छा ट्रेन करोगे उतना अच्छा आपके लिए स्टडी हो पाएगा. यानी कि प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस में, एप्टीट्यूड लगाते रहो, which will be definitely helpful to you. Even identify the best time, whatever you have time. अगर आपको लगता है सर मॉर्निंग मेरे को पढ़ने मजा आता है, वेरी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इवनिंग अच्छी होती है, नाइट, you have to select your best time for the study. That will be the helpful for your cracking the GATE examination. Solve different type of problem, easy, moderate, difficult. इसके क्या होगा, हमारा ब्रेन ट्रेन होता जाएगा. Now, the next important thing is the notes. अगर आपके पास notes हैं तो which will be definitely helpful to you. Notes are the important for the revision, because अगर आपने पढ़ लिया है, बुक से पढ़ा, आपने notes नहीं बनाए हैं, that is the reason that सबसे ज्यादा important इसलिए होता है कि note, because last time आपको सारे सब्जेक्ट रिवीजन करना है, so that is the best time to prepare notes. आपने जो भी क्लास में पढ़ते हो वो एक शॉर्ट नोट भी आप बना सकते हो अलग से, और क्लास नोट भी इंपॉर्टेंट होते हैं. शॉर्ट नोट्स आप की पॉइंट से बना सकते हो, बुक से बना सकते हो, क्वेश्चन बैंक, क्लास नोट से, किसी भी चीज से बना सकते हो. आपको लगता है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आया था शेड्यूलिंग में, कि सबसे ज्यादा बेस्ट इसमें एवरेज वेटिंग टाइम किसमें कम होगा, तो वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, जिसका एवरेज टाइम काफी कम हो जाता है. राइट, तो देयर इज सो मेनी पॉइंट्स आर देयर. हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट इज वन ऑफ द पार्ट. हम मॉक टेस्ट तो दे देते हैं लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं. अगर मैंने कहा कि सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, तो बच्चे बोलते हैं सर मॉक टेस्ट से कॉन्फिडेंस लूज होता है. नहीं, ये हमारा एक आइडेंटिफाई होता है कि हम कैसे वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करें, कैसे हम उसको फिनिश कर सकते हैं, कैसे टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं. यानी कि हमें स्कोर जिसमें कम होगा उसको हम ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा. अगर मुझे कोई अपनी कमी बता दे तो ये मान के चलना वो सबसे अच्छा चीज है. मॉक टेस्ट आपकी अपनी कमी को बताने का होता है, आपको एप्रिशिएट करने के लिए नहीं होता है. अटेम्प्ट विद द मल्टीपल सब्जेक्ट. हमारा ब्रेन एक ही सब्जेक्ट पढ़ता रहता है, सर मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से आता है, मैं बार-बार ऑपरेटिंग सिस्टम करता हूं, लेकिन एग्जाम में आपके सिर्फ 8 मार्क या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, लेकिन बाकी क्या होगा. इसका मतलब पहला क्वेश्चन हो इसका, तो दूसरा हो सकता है अलगो का हो. तो अपनी ब्रेन को ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमारे ब्रेन में स्विच होते रहे. द लास्ट वन इज अ फुल लेंथ टेस्ट लगा के प्रैक्टिस करने से, which will be definitely helpful to your benefit in of examination. Now, the last one is the point is how to stay motivation. क्या हम मोटिवेट करें खुद को.
बुक्स पढ़ना चाहिए मोटिवेशनल, और सबसे मेन बात मैं बोलता हूँ, एक अपने बोर्ड पे अपने घर के बाहर अगर अपने नोटबुक में या जहां भी आपको लगता है आपका जो स्टडी रूम होता है, स्टडी टेबल होता है, वहां पे लिख दो AI टॉप 100। आपका एक गोल होना चाहिए, आपको कभी रात को नींद नहीं आई, बिलीव मी। अगर आपका गोल आपके नोटबुक पे लिखा होगा कहीं पे कि आपको AI 100 रैंक लाना है इन 2021 और 2022, सो डेफिनेटली आपका एफिशिएंसी उसी वे में चालू हो जाएगा। Read the biographies of the famous CEOs. That is one of the best thing you have to motivate yourself. Identify your goal, such as high package or a IIT tag. क्यों मुझे करना है ये, वो सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे ये गोल ही नहीं पता है तो पढ़ने मजा नहीं आएगा। If you planning for the high package, that is the most welcome. This platform is definitely give a high package, more than 10 lakh, 12 lakh, 15 lakh package. अगर B करके आप 3-3.5 लाख का पैकेज लेके 6 महीने का ट्रेनिंग करने के बाद वेट कर रहे हो कि आपके हाथ में 25,000 रुपए आ जाएंगे, तो बिलीव मी, अगर आप ये सोच रहे हो तो गेट आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जो सीधे 10 से 12 लाख का पैकेज। अगर आप TCS कंपनी की बात करो, जो TCS आपके कॉलेज है, किसी भी कॉलेज में 3.5 लाख का पैकेज देती है, IIT NITs में वो पैकेज ऑलमोस्ट 8 to 10 लाख हो जाता है। आप चाहे तो किसी से भी फ्रेंड से पूछ सकते हो, क्योंकि वही कंपनी आपको हाई पैकेज में रिक्रूट करेगी, क्योंकि कम पैकेज वाली कंपनी उस कॉलेज में एंटर भी नहीं करती है। और दूसरा, द लाइफ लॉन्ग IIT टैग अपनी लाइफ में हमेशा बोलना चाहिए। एक होता है कि यार मैं IIT होना चाहिए, मेरा अलग ही फील होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे टीवीज में अगर आता है तो बोलता है तो IIT है, IIT से पास आउट है या NIT है, तो सोचकर अरे इसका एजुकेशन कितना अच्छा है। इन द होल लाइफ they have the tag that I have to complete my master from IITN. So this will be the best motivation which will be required to get the connect the examination. So that is from my side. I will hand over to sir. So wish you all the very best. So whatever you have doubt, we can open the chat box. Over to you, sir. Yeah. Thank you so much, sir, for such an informative session. So students, right now, what we'll do is I'll just enable the chat box for you. So in case if you have doubts and queries, you can just post your doubts on the chat box, and Amit sir can answer your questions one by one. So I'll just enable the chat box for you. Yeah. So it's enabled for you. You can start posting your doubts also, and you can what you can do is you can raise hand so that the professor can unmute you, and then you can ask your doubts. Yes, Malki, you can. Yeah. So sir, we have a doubt here. I'm in TE. Because of college timings, I cannot study on daily basis. So I decide to study for GATE on Sunday up to 5 to 6 hours. Is it okay? Manasi, I'm audible now? Sir, I'm audible? Yes, you are. You are. Okay, thank you. So Manasi, that is the best thing. If you have a third year, if you have sufficient time, so that will be very helpful to you. If you're planning for the weekend or the Saturday, Sunday, so our classes timing might be where you are the same or the weekend time. So it is sufficient for you. So this time you have a sufficient time. You're planning for the weekend 5 to 6 hours. That is more than sufficient. So even most of the students are planning for the daily basis, but it could be not possible sometime due to the college and due to the another work. Even most of the people who work in IT company, if they're planning for master, they're frustrated for 2-3 years working for the same routine for 10 12 hour in the work from home culture. So they are planning for the weekend. They dedicatedly time to the weekend also only. So they're definitely crack it. Even I more than a student have the planning for the only weekend because they have work somewhere. So that is you have a college, that is an advantage. You studied few subjects which is same in the GATE examination. So that could be the very helpful to you. So I'm definitely suggest you are planning for the 5 hour that is dedicated for the weekend. You definitely get a good rank. Okay. Yes, sir. So yeah, Shubham, definitely we'll be sharing you the class timing after this Q&A round. We have a proper slide for that, where you can just look for the college timing. And someone has asked the question that when I join the class, you will provide the notes. Of course, we will provide the notes. So you'll get booklets for each and every topic. You'll also get booklets for mathematics, and then you'll also get booklets for general aptitude.
Along with that, you will also get an important tool which is EQ and EQ solutions, that is examination questions and examination question solutions. And in total, this comprises of 8,000 challenging problems plus answers. So to answer your question, yes, you will get booklets with the course itself. Sir, I have another doubt from Shruti. She's asking that is there negative marking for GATE? Yes, there is a negative marking. That is the best thing, because without negative marking, we cannot say this as the one of the national level toughest examination. अगर मैं गेट के एग्जाम में नेगेटिव नहीं होगा तो उसका वेटेज ही खत्म हो जाएगा. Yes, it is there. The negative marking is 0.33 for a 1 marks question, or you can say that directly, that is 33%. 0.33 for the 1 marks and 0.6 is for the 2 marks question. And the advantage this time, there is an NAT, there's a that is a numerical answer type, यानी कि इसमें fill in the blanks enter करते हैं. There is no negative marking first of all, and the second time there is a MSQ, which is multiple choice answer. There also there is no negative marks. So negative is little bit less during the time. So you don't worry about the negative marks. Okay, and we have another question from Shweta. She's asking which books you refer for preparation for GATE. I mean, basically, she's asking us that which book should be refer for preparation of GATE. See, the point is that preparation of books. The first thing I suggest you, the faculty notes is sufficient. If you join when the class is going on, you can see that is we have a provide the class notes. Class note is the faculty provide the notes, means you are sitting in the classroom, you're preparing the notes, you're writing the notes, we solving the questions during the same topic. So this will be the first priority. The second thing, that is providing the ebooks. There is so many ebooks I will provide you. That is one of the video I already make it. That is we have that is हमने computer network के लिए मैं बोलूँगा Tandem is the best book. So whatever topic you have studied in your classroom, then I suggest you go to the ebook, and whatever you have doubt, then you can refer to books. So this will be your depth knowledge will be increases. And I recommend that there is also the material we provided the Vidya Alankar. There's so many 30 books are there, which is comes in a reference book also, and the some question bank book also, and there's so many materials available. So that is sufficient, and this book is sufficient, and reference book is more than important. So someone has asked me that, sir, after lockdown is over, the classes will remain online or it turns offline. So to answer your question, yes, after this pandemic is over, after the lockdown is over, definitely you'll have to come down to one of our classrooms and attend lectures there. Till that time, as we all know that the situation outside is not that great right now, and we are also following the government policies as of now, so we are keeping lectures online. But yes, once the pandemic is over, you'll have to come down to one of our classrooms and attend lectures there. I'm adding one more thing, sir. I'm adding one point here. Yes, sir. To be very frank, guys, so this the pandemic is a very good time, because you can understand that when we going to the physical classroom, you have to go for the by train, by road, and you have to prepare yourself. Maybe आपको आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है, 1 घंटा travel होगा. I'm not talking about the various the location might be in the Mumbai or nearby, whatever the locations you have. The जो भी हम physical classroom में जाते हैं, तो we have spent maybe 1 or 2 hours. So आने जाने में टाइम लगता है. यू आर टायर्ड आफ्टर द कम, आप घर आते हो टायर्ड हो जाते हो, यू आर गोइंग फॉर द, आप घर जाके एकदम रिलैक्स होके सो जाओगे. सो दिस टाइम द पैंडेमिक क्रिएट द अपॉर्चुनिटी कि आप अपने घर पे अपने कंफर्ट जोन में आप इमीडिएटली ब्रेकफास्ट करके सीधे सिस्टम के सामने लैपटॉप या मोबाइल लेके बैठ के सीधे सॉल्व करने बैठ सकते हो. दैट इज द बेस्ट टाइम टू सॉल्व. यस सर, कंटिन्यू सर. Okay, so I have a question from Yash. I want to know about test series. Yes, what you can do is, yes, we also have, I mean, during the course, you will be having various type of tests, as in there would be topic-wise tests, there would be subject-wise tests, and there will also be FLTs. Those are full-length tests. But if you are looking out for only test series, then I would suggest you to contact us separately so that we can give you detailed information on test series. I'll be sharing a number in the chat box with you, that is 900-438-4232. You can contact on that number and you can know more about test series. Nishat has asked, without GATE exam can we do masters? So is it possible for us to do masters without GATE exam, sir? I guess Nishan, yes, Nishan, the answer is yes.
Yes, there is so many colleges they have their self examination, that is triple IIT Hyderabad. They don't follow the gate examination scorecard. To be very honest, one of those my student Vidyalankar College also, with other classes student also, the Shreya Wanga is the name. She was not good in gate examination result. There is not got the good exam score actually. They got the 30-32 marks, just qualified marks. She was very upset and very worried about the what sir I do. So I motivate her that ki one of also friend with her. मैंने इसको मोटिवेट किया कि दैट इज टू एग्जामिनेशन रिजल्ट, देयर इज अ बिट्स प्लानी, तो खुद का अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है, और ट्रिपल आईटी हैदराबाद. तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद अगर यू सर्च ऑन द गूगल, इट्स द 5th नंबर कॉलेज इन आवर इंडिया व्हिच इज द हाईएस्ट पैकेज. आईआईटी को कॉम्पिटिट करता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इफ यू सर्च इट. नाउ the point is that मैंने उसको कहा कि in the month of the April or the May there is approximately around 1.5 महीने का टाइम है. You can अपसेट मत हो, अभी फिर से कोशिश करो, सब कुछ वापस से रीसेट करो, फिर से प्रिपरेशन करो. You don't believe me guys, she gave 200% this time and she cracked the triple IT the examination, entrance examination, which is similar to the gate pattern but little bit different. And then one interview is conducted after this, because there is so many students qualified, and there is a 2 or 3 two after one seat there is a 2 people are they call for the interview, and they asking for the basic about the gate में जो भी आप topic पढ़ा उसको आप explain करो, what is your project and everything, the basic interview, understand that. And finally she got the selected as last year, and this time उसका second year start होने वाला है, and you don't believe it guys, उसको 6 लाख का internship अभी offer हुआ है. 6 lakhs ka internship, that is a Samsung. She told me that because of our students there, she told me that sir the Samsung का तो सर internship ऐसे ही पड़ा हुआ है, हर कोई लेता भी नहीं, उनको सबको 10 लाख का चाहिए. That is the attitude she cracked now time. Nowadays after 1.5 years का जो 2 year complete होने वाला है, उसका placement आने वाला है, अभी उसका attitude will be change कि सर 6 लाख का internship अभी पड़ रहा है लेकिन हम लेते नहीं, हम लोग preparation करके बड़ा कंपनी में जाना है सर. That is the attitude. So you can understand that. So few examination are there, triple IIT Hyderabad, BITS Pilani, and that is one more thing, that is JNU is one of the college जहाँ पे अलग से exam होता है. Yes. And to add on to this, sir, we always say to all our students that if you are targeting, if you really want to pursue masters, then your future college should be 10 times better than your current college. तभी उसका फायदा होगा, right? So again, even my suggestion would be that you give GATE exams, and then to your GATE score, you should target one of the other good premium or private colleges or government colleges in India. Sir, I have a question. Shubham has asked me that, do you have a Vidyalankar branch in Nasik? Shubham, unfortunately, we do not have a Vidyalankar branch in Nasik. But what you can do is you can, call on the number which I have provided on the chat box, and you can ask for a CLP program wherein we provide books, pre-recorded video lectures and test series for the students who are outside Mumbai and Pune. Another question, Yash has asked me, when can I purchase test series from Vidyalankar for GATE 2022? Will it be as per the new pattern? Yes, of course, it would be as per the new pattern, yes. So you can call on that number and you can do your inquiry. Anushka has asked if we are not able to do classes physically after pandemic because of our college, then also we can do online classes. Anushka, your lectures after the pandemic would be only on Saturdays and Sundays. So I guess your college timings are only on from Monday to Friday, and your GATE lectures at Vidyalankar would be on Saturdays and Sundays. So it's a weekend batch. So definitely you can come down for a physical batch. Priya Darshan has asked, I am from Pune, so where will class location be after pandemic, or can I attend online, and how many months course will it be? Priya Darshan, yes, of course we do have a branch at Pune, that is in Shivaji Nagar, HT Road. So you can come down for physical classes at that location. And also I would like to ask you, are you right now, are you in third year or final year? Are you a third year engineering student or a final year engineering student? Okay. Again, we have another question. Third year. Okay. So yes, till the time pandemic is there, you need to attend lectures online. But once the pandemic is over, you'll have to come down to Pune, Shivaji Nagar, FT Road, and attend lectures there. There's another question. Vidyalankar classes is in Akodi or Pimpri, Chinchwad, Pune.
Uh, yes, as I said, we have a branch at Pune, Shivaji Nagar. Sir, can you please give the number again? Yes, definitely. I'll share the number again with you, Rutika. Any other questions? So I'm just how many months course? Yeah, so it's a 1.5-year batch, Priyadarshan. So if you enroll now, your course will be valid till May 2022. So it's a 1.5-year batch wherein we'll complete the entire topics for you, and some of the topics will also be repeated twice for you. Okay, so I'll share the number again with you. It's 9004 38 4232. 9004 38 4232. Yes. Any other questions? Okay. Anushka is asking, I'm not from Pune, so can't come and attend classes physically. Is it fine? Of it online after pandemic also? Anushka, where do you stay? Where are you from, Anushka? Okay, Anushka, I unfortunately we do not have a Vidyalankar branch at your location, but still, as I said, you can call on the number which I have already shared with you, and you can ask for a CLP program wherein we provide study materials, that is that is booklets, and we also provide pre-recorded video lectures, and along with that you also get test series. So test series mein you will get everything, as in topic wise test, subject wise test, and then at the end you will also get abilities. Those are full length tests. So you can opt for that course maybe, and you can call for inquiry. You can call on the number which I've already shared with you. Any other questions? Okay, so sir, I guess that's it for today. I want to Thanks. add, sir. I want to add one more thing. Yes, sir. Yes, sir. Sure. Students, that is the best time to join the institute. That is, I can suggest you, because I'm the part of the Vidyalankar around 3 years. So that is the best institute in the whole Maharashtra. Even I can say that in the Mumbai, Pune, there is a total overall most of the students join, and you can take the advantage during the pandemic, because that is the only time you can get your good rank, because you don't have to effort to travel to from other branches, or physical traveling is not there. What are the location you have, that is an advantage. You can join the sessions. The weekend batches is there totally. It is not affected on your academics of the colleges, and not your any affected on your timing. So that is the best time, guys. You can do, even give your 200% at your home. So guys, whatever you have planning for that gate examination, that is the only best time to have to think. Don't be late, because so many students are going for the planning for the gate 2021 as well as 2022. If you planning delay a little bit, so it will be something effect for the competition part, because you can understand that the global world will be connected online, that the competition level will be very, very high. So this time is the opportunity, guys. Do your best, and the best thing you can definitely come to you, and you definitely reach your highest goal in your life. So I wish you all the very, very best. There is a number is visible to your screen. You can contact them. You can inquire them. Whatever you have query, you can contact to me also if you have anything, because I'm the faculty over here. So if you have anything, you have mind, you have doubt, little bit, you can clear it, and you can think positively from next few year, and you can decide after 5 years आप अपने आप को किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर देखना चाहते हो. जब आप मुड़ के देखो तो मैंने लाइफ में अच्छा डिसीजन लिया था, और यही वो टाइम है डिसीजन लेने का. उसके बाद आपको मौका शायद मिले या ना मिले. So give your best. Thank you all most. Thank you. All the best. Thank you so much for such informative session, sir. I guess we have missed out on the second last slide. Can you just Yeah. go through the batch schedule timing? Yes. Yeah. Yes. So batch schedule for GATE 2022. Yeah. So as you can see on the screen,
the timings, your lectures would be only on weekends, that is on Saturdays and Sundays. Saturdays you'll have your lectures from 6:30 to 9. And on Sunday you'll have a 5-hour session that would be from 2 to 4:30, and then you'll get a break for half an hour, and then you'll have a lecture from 5 to 7:30. So that would be your batch timing. And the fees for the entire course, the original fees is 44,000 rupees, but due to this COVID-19 situation, we are giving 12,500 concession to everyone. So your total fees as of now is 31,500, and you can enroll with that fee till the last date for enrolling within this fees is 16 September. So I would request you to call on the number which I have provided to you, and you can do your inquiry there. Thank you so much, sir, for such an informative session. And for the students out there, I would really wish good luck to you, and stay safe. Take very good care of yourself, and make optimum utilization of the time you have with you right now. Thank you so much. Thank you so much, sir, once again. Thank you. Thank you so much.